ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਰੋਲੀ ਕਪੂਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਪੂਨਮ ਕਪੂਰ, ਅਤੁਲ ਕਪੂਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਪੂਰ, रजनी कपूर, राजेश शर्मा, रजनी शर्मा, सुरिंदर कपूर, सुनीता कपूर, साहिल कपूर, किरण कपूर, मौलिक, धानवी, हिमनिश, लक्षिता, गणिका, जीविका, हितांश, दक्षित, निशी शर्मा, लक्ष्य शर्मा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਾਰੰਗ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 3 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਸੁਰੇਸ਼, ਹਰੀਸ਼, ਅਤੁਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਉੱਘੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੁਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਫਰਮ MK ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮੌਲਿਕ, ਧਨਵੀ, ਹਿਮਨਿਸ਼, ਲਕਸ਼ਿਤਾ, ਗਣਿਕਾ, ਜੀਵਿਕਾ, ਹਿਤਾਂਸ਼, ਦਕਸ਼ਿਤ, ਨਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਯ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। तम रामचन्द्रं शिरसा नमामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करुतले वेणुकरी कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परमेष्टतो विजयते गोपालचूडामणिम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोलो विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। कि किसी के हाथ में नहीं है। अगर किसी के हाथ में होता तो कोई यहाँ से नहीं जाता, लेकिन जो यहाँ आया है सबको एक ना एक दिन जाना पड़ता है। लेकिन जाने का भी तरीका होता है। कोई कोई ऐसे जाता है कि मन में होता है चला जाए तभी बढ़िया है, लेकिन कोई कोई ऐसे चला जाता है कि जिसका दुख जिंदगी भर नहीं जो है भूला जा सकता। इस तरह से कपूर साहब जी के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि उनके साथ ऐसी घटना घट सकती है। जहां मिलना सबसे हंसना, बड़े प्यार से मिलना। ये भी नहीं पता था कि इनको कुछ हुआ है। अगर कुछ उनको बीमारी भी हो तो किसी को बताते नहीं थे। इतने हिम्मती थे, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था कि किसी को नहीं पता था कि इतना जल्दी उनको जाना पड़ जाएगा। इसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये प्रकृति है, ये ईश्वर का नियम है कि जन्म मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जब भगवान श्री राम जी का वनवास हो गया, महाराज दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए। भरत जी ननिहाल में थे। भरत जी बुलाए गए। जब भरत जी ननिहाल से आए तो भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि गुरु जी ये बताइए, आपके रहते हुए हमारी अयोध्या की ऐसी दशा क्यों हुई। गुरु वशिष्ठ ने कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपयश विधिया। वशिष्ठ जी ने कहा, जो वशिष्ठ जी कभी करुण क्रंदन, कभी जो वशिष्ठ जी सबको जो है दुख बर्दाश्त करने की शक्ति देते थे, आज वशिष्ठ जी महाराज रोने लगे। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहा मुनिनाथ। रोते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि ये भरत, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयश विधिया। 6 चीज अपने हाथ में नहीं है, 6 चीजें विधाता के हाथ में है। विधाता जैसे चाहता वैसे करता है। अगर मेरे हाथ में होता तो अविद्या की ये दशा नहीं होती। लेकिन जब तुम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले मैंने ये सारी बातें महाराज दशरथ को बता दिया था। महाराज दशरथ को जब मैंने बताया था, उस समय सुमंत्र भी थे, लेकिन सुमंत्र को हमने बोला था कि ये चीज किसी को पता नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ महाराज दशरथ और हमारे बीच में रहना चाहिए। ये चीजें तो हमने पहले ही बताया था कि होकर के रहेगा, क्योंकि विधाता के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है। भगवान क्या करते हैं, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे हम लोगों को नचाते हैं। जैसे मदारी बंदर को क्या करता है, बंदर को पकड़ने के लिए मदारी एक घड़ा रख देता है, सकरे मुख वाला, उसमें चने रख देता है, और चना खाने को बंदर को बड़ा शौक है। चने से बड़ा प्रेम होता है बंदर को। बंदर एक एक चना निकालता है, तब तो मुट्ठी खुलती जाती है। जब बंदर सोचता है कि मुट्ठी बंद करके हम चना, पूरा चना एक बार में निकाल लें,
तो बंदर पकड़ा जाता है। उसी तरह से हम लोगों की भी दशा है, माया मोह के चक्कर में आकर के जैसे प्रभु चाहते हम लोगों को नचाते हैं, जैसे मदारी डमरू बजाता है तो बंदर नाचने लगता है, वैसे हम भी माया मोह के चक्कर में आकर के परमात्मा के वशीभूत होकर के परमात्मा जैसे चाहते हैं वैसे हमको नचा रहे हैं, वैसे घुमा रहे हैं। क्योंकि जब किसी का जन्म होता है तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि बच्चे की आवाज आती है, कहाँ हे परमात्मा ये मैं कहाँ आ गया। क्योंकि जब तक जीव गर्भ में होता है तब तक साक्षात भगवान का दर्शन करता रहता है, जैसे ही बाहर आता है वैसे ही विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, माया देवी भगवती के चक्कर में जीव पड़ जाता है और नाना प्रकार के पाप कर्म करने लगता है और परमात्मा को भूल जाता है। देखा होगा जब किसी का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, लेकिन जब कोई जाता है तो उसकी मुट्ठी खुल जाती है। जैसे जुआरी जुआ में हार जाता है तो हाथ मलमल के पछताता है, वही दशा हम लोगों की होती है। परमात्मा से प्रार्थना करके तो आगे, हे प्रभु मुझे इस मलमूत्र के गर्त से उबाल लो, यहाँ से जाने के बाद मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन यहाँ आकर के हम लोग क्या किया, बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अभी तो बचपना है, अभी खेल लेने दो, अभी जवानी है, धन कमा लेने दो, बुढ़ापा में भगवान का भजन करने। अरे बुढ़ापा किसने देखा है कि बुढ़ापा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जवानी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जिसने आज रात देख लिया कल की सुबह देखेगा कि नहीं देखेगा, जिसने सुबह देख लिया और रात देखेगा कि नहीं देखेगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, आज नहीं कल करेंगे। कल तो किसी का होता नहीं, कल का नाम ही काल है। क्योंकि इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, धन का कोई ठिकाना नहीं है, इस शरीर अपना कैसा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राते को जाने खिले न खिले, मलिया गिर शीतल मंद सुगंध, समीर चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली ना झिली, भजली हरि नाम हरि रसना, भजली हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। किसने देखा है कि अंत समय में भगवान का नाम लेकर के हम लोग जाएंगे? क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं है हमारा अंत कैसे होगा, किस जगह जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, किसी को नहीं पता है। या तो हम लोग परमात्मा की इतनी कृपा हमारे ऊपर हो कि हम भीष्म पितामह बन जाएं। भीष्म पितामह ने भगवान से वरदान मांगा था कि हे ठाकुर मैं प्राण तभी त्यागूंगा, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवी। भीष्म पितामह को तो पता था, इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा, पितामह आप आकर के, पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जब मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा, आप आकर के मेरे सामने खड़े हो जाना और बंसी की धुनी सुना देना। आपके अनुपम रूप को देखते हुए मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। लेकिन हम लोगों का ऐसा सौभाग्य तो नहीं है कि इच्छा मृत्यु तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जान करके ढीठ बने हुए हैं। कभी ये नहीं सोचते कि एक ना एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। जाना तो सबको पड़ेगा, चाहे जिस रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना पड़ता है। क्योंकि इस संसार में जो आया है कोई रहने के लिए नहीं आया है। इस संसार में जो आया है सबको जाना पड़ेगा। अगर संसार में कोई रहने के लिए आता तो साक्षात प्रभु श्री राम आए, उनको भी जाना पड़ा, भगवान कृष्ण आए, उनको भी जाना पड़ा। एक ना एक दिन सबको यहाँ से जाना पड़ता है। ये है कि जिसने
भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को सुधार लिया, उसका मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। जिसने पूरी जिंदगी अपनी अवधि गवा दिया, उसकी जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना दोनों जो है निरर्थक हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा नरक शास्त्रों में कहा गया है, पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस सबसे बड़ा नरक कहा गया है। इसी को रौरव नरक कहते हैं। जब तक जीव गर्भ में होता है तब तक परमात्मा से ही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस मलमूत्र के गर्त से उबाल लो, यहाँ से जाने के बाद मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। हमने प्रार्थना तो परमात्मा से किया कि हे परमात्मा मुझे इस मलमूत्र के गर्त से उबालो, यहाँ से जाने के बाद मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए 100 वर्ष की आयु मुझे मिल भी गई, तो हमने क्या किया, 50 वर्ष तो सो के बिता दिया, कुछ बालपने में गंवा दिया, कुछ जवानी में गंवा दिया। अब बुढ़ापा है, बुढ़ापे में सब कुछ करना है, सारी जिम्मेदारी बुढ़ापे पर छोड़ दिया। अब बुढ़ापा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे कि निभा पाएंगे। इसलिए परमात्मा का नाम जपने का कोई समय नहीं बताया गया है। एक घड़ी परमात्मा कभी नहीं कहते दिन भर मेरा नाम लो, रात भर मेरा नाम लो। एक घड़ी आधी में पुनिया। जितना समय मिल जाए सच्ची श्रद्धा से अगर भगवान का नाम ले लिया जाए, निश्चित रूप से अपना बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा किसी के साथ कुछ नहीं करता है। कहते हैं ये तो अपना लेना जोना होता है, जो कुछ हम करते हैं वही फल हमको मिलना पड़ता है। जन्म और मृत्यु, जब किसी का जन्म होता है तो मृत्यु उसके साथ ही आती है। जन्म के समय ही मृत्यु लिख दी जाती है कि इनका मृत्यु कब होगा, इनका जन्म कब होगा। जन्म के समय मृत्यु साथ, इंसान के साथ ही मृत्यु आती है। और जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोग करके यहाँ से चला जाता है। एक कथा आती है कि काशी में सदन नाम के एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण देवता गंगा नदी के किनारे पर बैठ करके गायत्री का जप कर रहे थे। उसी समय एक कसाई एक गऊ का पीछा करते करते आया। बोलता है, ब्राह्मण देवता क्या आपने मेरी गऊ देखा है? मेरी गऊ यहाँ से भग कर गई। ब्राह्मण देवता जप कर रहे थे, कुछ बोले नहीं, हाथ से इशारा कर दिया कि गऊ इधर गई है। कसाई ने गऊ को पकड़ लिया। गऊ को पकड़ करके गोवध हो गया। गोवध होने के कारण आज सदन को अगले जन्म में कसाई बनना पड़ा। अगले जन्म में उनको कसाई के घर जन्म लेना पड़ा। अब कसाई के घर जन्म लेकर के सदन, जो कसाई के घर कारोबार होता था उस कारोबार को करने लगे। लेकिन सदन को अपने पिछले जन्म का संस्कार याद था कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था। आज सदन को एक दिन शरीर से वैराग्य हो गया। सदन ने सोचा मैं इतना पाप कर रहा हूँ, इस पाप को मैं भरूंगा कैसे, मेरा क्या बनेगा। सदन ऐसा सोच करके भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए चले। लेकिन पहले आज जैसे रास्ता नहीं थी, पहले पैदल जाना पड़ता था। सदन आज भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए चले। रास्ते में चले, उनको रात हो गई। रात को किसी गांव में रुक गए। जब सवेरा हुआ तो सदन बोलते हैं कि अब मैं चलता हूँ। जिसके घर सदन रुके थे उसने कहा कि सदन तुम्हें मेरे साथ ब्याह करना होगा। सदन ने कहा देवी तुम मेरी बहन हो, रात में मुझे विश्राम कराए, मैं तो जो है तुम्हारे साथ ब्याह नहीं करूंगा। अब युवती ने बार बार सदन को कहा तो सदन ने कहा तुम्हारा तो ब्याह हुआ है। जब इस तरह से सदन ने कहा, युवती ने गड़ासा उठाया, अपने पति को काट डाला। जब अपनी पति को काट डाला, जोर जोर से फिर रुदन करने लगी। आज गांव वाले इकट्ठा हो गए, मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। आज युवती से पूछते हैं क्या हुआ। उसने कहा कि रात को इनको मैंने अपने घर में विश्राम कराया, लेकिन ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहे। जब मेरे पति ने इनको मना किया तो इन्होंने मेरे पति को मार डाला।
लोगों ने कहा कि कोई युवती झूठ तो नहीं बोल सकती, ना अपने पति को मार सकती है। आज क्या हुआ? आज पंचायत ने कहा इन हाथों से इन्होंने वध किया है, इसलिए सदन के दोनों हाथ काट देना चाहिए। आज सदन के दोनों हाथ कट गए। कटे हुए हाथ से आज भगवान जगन्नाथ के पास गए। जैसे भगवान जगन्नाथ के पास गए, भगवान जगन्नाथ को हाथ जोड़ा, प्रभु कृपा से उनके दोनों हाथ जुड़ गए। आज सदन ने भगवान जगन्नाथ से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि मेरे हाथ क्यों कटे? सदन ने कहा, भगवान ने कहा कि तुम जिसके घर रुके थे, पता है पिछले जन्म में वही कसाई था और उसकी जो घरवाली थी वही गऊ थी। तुमने इस हाथ से इशारा किया था, इसलिए तुम्हारे हाथ कटे। और उस युवती ने अपने पति को मार दिया, माने गऊ ने कसाई को मार दिया। उनके पाप कर्म निवृत्त हो गए और तुम्हारे हाथ कट गए, तुम्हें भी पाप से निवृत्ति मिल गई। इसलिए जो जैसा कर्म कर रहा है उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ भोगे चाहे वहां भोगे, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन लिखा गया है शास्त्रों में, इस गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुत्र सच्ची श्रद्धा से अपने पिता के लिए जलांजलि देता है, पिंडदान देता है, निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि एक काल सबको अपना ग्रास बनाता है। रावण ने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि सारे देवी देवताओं को बस में कर लिया कि देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है। रावण अपना शीश काट काट के भोले बाबा को चढ़ा रहा है। भोले बाबा से कहता है, क्यों भोले बाबा आप भाग्य लिखते हैं? भोले बाबा ने कहा, भाग्य विधाता मैं तो नहीं हूँ, भाग्य विधाता ब्रह्मा जी हैं। आज ब्रह्मा जी की आराधना किया, ब्रह्मा जी आए। रावण बोलता है कि ब्रह्मदेव ये बताओ कि मेरी भाग्य में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी ने कहा, रावण कटे हुए शीश को उठा, तुझे पता लग जाएगा कि तेरी भाग्य में क्या लिखा है। रावण ने कटे हुए शीश को उठाया, उसमें लिखा था इक्ष्वाक वंश के नरेश महाराज दशरथ होंगे, उनसे जो पुत्र पैदा होगा रावण तेरी मृत्यु का कारक बनेगा। आज रावण ने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, अब मैं भगवान विष्णु को ही बुला लेता हूँ। भगवान विष्णु की आराधना किया, भगवान विष्णु आए। लेकिन भगवान विष्णु को दूर से ही देखकर रावण कहता है कि हे प्रभु, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि महाराज दशरथ के कोई संतान ही ना हो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने लिखा है इक्ष्वाक वंश के नरेश महाराज दशरथ होंगे, उनसे जो पुत्र पैदा होगा रावण तेरी मृत्यु का कारक होगा। जब महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु कहाँ होगी? ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण अनहोनी कभी हुई नहीं, होनी कभी टली नहीं। मैंने जो लिख दिया इसको मिटाने वाला इस संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी इतना प्रयास करने पर रावण की मृत्यु हो गई। रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर ध्यान बाती, लंका सकोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। लंका के चारों तरफ परकोटा बना दिया, फिर भी रावण नहीं बचा। एक ना एक जो काल है, काल सबको अपना ग्रास बनाता है, किसी को छोड़ता नहीं है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कल्पना ही थी, किसी की सोच ही नहीं थी। लेकिन यहीं पर आकर के मनुष्य जो है बेबस होता है। यहीं पर आकर के प्रत्येक मनुष्य अपने हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि इस सृष्टि में परमात्मा ने कुछ ऐसी चीजें जो है अपने हाथ में रखी होती। मनुष्य जितना मर्जी चाहे जोर लगा ले, उसका जोर नहीं चलता। ये क्या है?
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि, संसार में कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे हानि हो, लेकिन हो जाती है। लाभ, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे लाभ हो, लेकिन होता नहीं। जीवन, संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मरना चाहता हो। जड़ चर, थल चर, नभ चर, अनेक प्रकार के जीव, प्रत्येक जीव को मृत्यु से भय लगता है। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन वो मौत जो है किसी को नहीं छोड़ती। हानि लाभ जीवन मरण और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, विधि हाथ, ये ईश्वर के हाथ में, ये परमात्मा के हाथ में। शास्त्र कहता है, शास्त्र की बातों को यदि हम पढ़ें, यदि हम शास्त्रों को माने, तो हमारे शास्त्रों में एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो लिखा हुआ है, वो एक एक वाक्य, एक एक शब्द शत प्रतिशत सत्य है। उस सत्य को कोई टाल नहीं सकता। क्या लिखा है शास्त्र? जब इंसान जन्म लेता है, कहते 5 चीजों को साथ में लेकर के आता। वो 5 चीजें क्या है? आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। आयु, जन्म लेते ही कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन, कितने घड़ी, कितने पल तब इसने इस धरती पर रहना है, वो निश्चित है। कर्म, एक माता पिता के कई संतान हैं, एक सुखी है, एक दुखी है, एक बुद्धिमान है, दूसरा मंद बुद्धि है, एक पढ़ा लिखा है तो दूसरा अनपढ़ है। माता पिता वही है, पालन पोषण वही है, लेकिन कर्म सबके अलग अलग हैं। आयु कर्म वित्तम, तीसरा धन। एक व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है, 2 समय की रोटी उसको पूरी नहीं मिलती, लेकिन एक व्यक्ति थोड़े से मेहनत से उसके पास अथाह संपत्ति आ जाती है। ये धन भी जो है जन्म से लेकर के आता है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या, चौथी बात विद्या है। विद्या जो है, एक व्यक्ति है, धन संपन्न है, हर चीज अपने बच्चे को पढ़ाने में समर्थ है, लेकिन उसका बच्चा पढ़ता नहीं है। और एक गरीब है, उसका बच्चा पढ़ लिख जाता है। और 5वीं है निधन, मृत्यु। ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को मनुष्य जो है जन्म से ही साथ में लेकर के आता है। हम लोग जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम सब मेहनत करते हैं, लेकिन कोई किसी को बचा नहीं सकता। वो भी अंतिम में कहते हैं कि भाई भगवान से प्रार्थना करो, अब तो जो है कोई भगवान ही बचा सकता। इसलिए जन्म और मरण ये निश्चित है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः मृत्युर्जन्म ध्रुवस्य च तस्माद्
परिहारेरथे न त्वं शोचितुमर्हसि। महाभारत का युद्ध होने वाला था। आमने सामने कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है। अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिया कि हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे अपनों को नहीं मारना, मुझे अपनों को मार करके ये संसार का राज्य सुख भोग नहीं चाहिए। जब धनुष बाण त्याग दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम कहते हो कि मैं मारूंगा, तुम्हारे अंदर किसी को मारने की क्षमता है कहां? जन्म और मरण भगवान कहते हो तो मेरे हाथ में है। इसलिए भगवान ने कहा, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, जीव मात्र जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिसकी मृत्यु हुई है, कर्म के अनुसार उसका अगला जन्म भी निश्चित है, कर्म के अनुसार। और उसने मानव जीवन को प्राप्त करके कैसे कर्म किए? मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति जिया कैसे है? तो जैसे हमारे कपूर साहब का जो जीवन है, इतना बढ़िया जीवन रहा, और जाते समय भी ऐसे गए, किसी को पता ही नहीं लगा। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं है। ऐसे इस तरह से जो जाते हैं वो महापुरुष जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ, महापुरुषों की जो है मृत्यु ऐसी होती है कि उनको पता ही नहीं लगता, कोई कष्ट नहीं होता। और जो पापी पुरुष होते हैं उनकी मृत्यु बड़ी दुखदाई होती है, बड़ा कष्ट होता है अंतिम समय में। इसलिए हमारे कपूर साहब बहुत ही धर्मात्मा, समाज सेवक ऐसे व्यक्ति थे। आज उनके किए हुए धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो किए हुए कार्य हैं, उन कार्यों को प्रत्येक व्यक्ति सराहना करता है। इसलिए ऐसी पुण्यात्मा जगदीश कपूर जी ठीक है, संसार से चले गए, अब जाने का दुख सबको है, लेकिन इस दुख को दूर कैसे किया जाए? हमारे पास है कोई उपाय? संसार में किसी के पास ऐसा उपाय नहीं है जो गया उसको वापस ला सके। इसलिए शास्त्र ने कहा, मनुष्य जीवन प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, मानसम दुर्लभम लोके। संसार में मनुष्य का जीवन बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है। इसलिए इस दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है, उस जीवन की, उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए हमें इस संसार से जो व्यक्ति जाता है, उसके जाने में भी जो है, उसके जाने में भी सारी दुनिया उसके जो है जय जयकार करती है। उसका जाना भी जो है ना, एक तरह से हमें इस बात का एहसास कराता है। संसार में जन्म और मरण तो निश्चित है, लेकिन मानव जीवन प्राप्त करके जिस व्यक्ति ने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ और अपने संपूर्ण कार्यों को करके संसार से जाता है, उस व्यक्ति का जाना भी जो है असली में संसार से उसका जाना होता है। नहीं तो कीड़े मकोड़े आदि भी रोज जन्मते और मरते रहते। शास्त्र ने कहा, मनुष्यों में और जानवरों में क्या फर्क है कोई अंतर?
शास्त्र कहता है क्या, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणम। खाना पीना सोना भय, संतान उत्पन्न करना, संतान के प्रति मोह, संतान का पालन पोषण करना, ये तो सभी जीव करते हैं। पशु भी करता है, पक्षी भी करता है, सब जो है अपने बच्चों के प्रति सबका स्नेह होता है। तो हमारे अंदर क्या अंतर है? हम भी तो वही करते हैं जो पशु करते हैं, जो पक्षी करते हैं, जो दूसरे जीव करते हैं। तो हमारे में और दूसरे जीव में क्या भिन्नता, क्या अंतर है? तो कहते हैं कि धर्मो हि तेषां परमो विशेषा। मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है, मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है। ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये काम हमें करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। इस बात को समझने की शक्ति और बुद्धि ये सिर्फ मनुष्यों में है। इसलिए कहा धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः। धर्म, मनुष्य जो है धर्म कर सकता है। विशेषता किस किस की है? धर्म की है। आज संसार में धर्म को लेकर के लड़ाई है। संसार में जितना भी उत्पात है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, आज किसको लेकर के लड़ रहे हैं? धर्म को लेकर के लड़ रहे हैं। वो कहता है कि मेरा बड़ा धर्म है, दूसरा कहता है कि वो मेरा धर्म है, तीसरा कहता है कि मेरा बड़ा धर्म है। लेकिन धर्म की परिभाषा कोई नहीं जानता कि धर्म कहते किसे। सुनील मौदगिल जी बीजेपी, उनके तरफ से शोक पत्र आया है। और विजय धवन जी दानव, विजय दानव जी, उनके वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी शिरोमणि अकाली दल विजय दानव जी, राजेश शर्मा जी, मिंटू और सौरभ अत्री जी, और जो है ये सबके तरफ से शोक पत्र आया हुआ। अनिल शरीफ जी, उनके वो भी यहाँ पर उपस्थित है। स्पीकर स्पोकमैन बीजेपी पंजाब। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शोक संदेश आया है। पुष्पेंद्र सिंघल जी के तरफ से भी शोक पत्र आया हुआ है। ये बीजेपी प्रेसिडेंट लुधियाना। कांतेंदु शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी लुधियाना बीजेपी, इनके तरफ से भी जो है शोक संदेश आया है। चेयरमैन जो है दर्शन अरोड़ा जी लुधियाना, जो है सिटीजन सोसाइटी के तरफ से शोक पत्र आया है। श्री जंगीलाल महाजन जी एमएलए मुकेरिया, उनके तरफ से शोक संदेश आया है। भोले की फौज की तरफ से जो है शोक पत्र आया है। और भारतीय सेवा धर्म संगत के तरफ से शोक पत्र आया है। और बलजिंदर सिंह राणा जी जो है वाइस प्रेसिडेंट, इनके तरफ से शोक पत्र आया है। गुरमीत सिंह जी के तरफ से भी प्रेसिडेंट, इनके तरफ से भी शोक पत्र आया है। और उपकार सिंह घुम्मन जी एक्स चेयरमैन, इनके तरफ से शोक पत्र आया है। और मनीष मल्होत्रा जी, इनके तरफ से शोक पत्र आया है। एडवोकेट अरविंदर शर्मा जो है लीगल से बीजेपी, इनके तरफ से शोक पत्र आया है। प्रभजोत सिंह जी के तरफ से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बीजेपी है,
उनके तरफ से शोक पत्र आया है। और घनश्याम जी आनंद, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी, इनके तरफ से शोक पत्र आया है। नवल कुमार जी को शोक पत्र आया है मुकेरिया की तरफ से। जगदीश कपूर जी दी शोक सभा दे विच बैठे मेरे बड़े सत्कारयोग श्री दर्शन अरोड़ा जी, हरी सरीन जी, सारा कपूर परिवार, हरिंदर नारंग जी, रविकांत गुप्ता जी, ते सारे मेरे इस शोक सभा दे विच आए भैनों दे भरावो फतेह दी सांझ करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जदों मैनू आ खबर मिली कि साडे विच कपूर साहब नहीं रहे, यकीन नहीं होया। अतुल कपूर, सारे इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ब्रदर ने हरीश जी छोटे, 2 दिन पहला मैं फोटो देख रहा थी फेसबुक पे, कितने खुश लग रहे थे परिवार। छोटी उम्र दे विच चले जाना। अतुल नाल गल होंदी सी, कहते सी कि मेरा प्यो नहीं है, मेरा भरा भी है, मेरा यार भी है। असी दिल दीयां गल्लां भी साझियां करते हैं, राजनीति भी साझी करते हैं, हर गल उन्हां दे नाल साझी करते हैं। एडा वड्डा घाटा मैनूं लगदा कि कपूर परिवार नूं पिया ते सारे समाज नूं पिया। आ बड़ा औखा होना कपूर साहब, लेकिन आ जिहड़ा घाटा सानूं घाटे नाल रहना पैना है। एक छोटी जी मैं सवेरे पढ़ रहा सीगा कि पिता नूं कहने की जरूरत है, कोई बात नहीं, आप जहां जाना चाहते थे जाइए, लेकिन मैं आपको आवाज दूंगा, हर दिशाओं में आपको आना होगा, आपको आना होगा कम से कम मेरे ख्वाबों में, कम से कम मेरे सपनों में, और आके मुझे एक बार बेटा कहकर पुकार लेना, मुझे गले से लगा लेना। आपके बिना कैसे चलूंगा, फिर से उंगली पकड़कर थोड़ा रास्ते में बढ़ा देना। हे पिताजी, आप हर पल मुझे इतना एहसास दिला देना कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे साथ रहना। हिंदू मैथोलॉजी में लिखा है कि सिर्फ शरीर नाशवान है, आत्मा अमर रहती है। मुझे लगता है कपूर साहब, जगदीश जी साडे नाल हमेशा ही रहेंगे। उन्होंने दे आदर्श, उन्होंने दियां दित्तियां होईयां शिक्षावां, उन्होंने दे दिते हुए जिहड़े रस्ते जो सानूं सिखा के गए ने, उन्होंने रस्तियां ते असीं चलांगे। जो धर्म बारे उन्होंने दी रुचि सीगी, जिद्दां अपने धर्म ते खड़े रहना, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना, उन्होंने दियां सारियां शिक्षावां ते कपूर खानदान चलेगा और असीं चलांगे। एक बार फिर अपने दिल दी गहराइयां दे विचों कपूर परिवार नाल बहुत बहुत सहानुभूति। परमात्मा उन्हां नूं अपने चरनां दे विच निवास बख्शण। ओम शांति शांति। इस दुख की घड़ी कपूर परिवार के नाल उन्हां दा दुख साझा करने वास्ते आए। दुख मनाया घट जाता है, खुशी शामिल होए, खुशी चौगुनी हो जाती है। अटल सत्य कि जो जीव इस सृष्टि च आया एक ना एक दिन उसने अपने श्वासा की पूंजी जो पूरी हो जाए उसने चले जाना। और जदों भी अतुल जी नूं मिलन जाना, घर जाना होना, तो बाजी ने अक्सर हर विषय अपनी चिंता व्यक्त कर, समाज किसे पास जा रहा है, देश के पासे जा रहा है, और बहुत जागरूक सामाजिक समस्याओं वास्ते। और वही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों च पाए। अतुल जी उन्होंने भरा, बिकॉज शायद ही ऐसा कोई धार्मिक समागम होएगा जिसे शमूलियत ना होगी, शायद ही कोई ऐसा सामाजिक
कार्यक्रम होएगा जिस वध चढ़ के भाग ना लेंदे हो। और अज के समय दे विच अपने रुझेविਆਂ चों समय कढ़ के धर्म वास्ते, समाज वास्ते, देश वास्ते काम करने वाले बड़े विरले दिखते हैं। और ये वही कर सकते हैं जिन्हों के माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिते हो, उन्होंने आप काम किया। और मैं उम्मीद करदा कि जगदीश जी के दिखाए रस्ते ते चलते हुए अतुल जी और उन्होंने भरा उन्होंने संस्कारों को अडॉप्ट करते हुए होर अगे समाज की वध चढ़ के सेवा करेंगे। साडे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत अच्छे सिपाही ने अतुल जी, और शायद ही पार्टी का कोई ऐसा कार्यक्रम हो जो शामिल ना हो, उन्होंने वध चढ़ के और इन्हें जो जड़ा काम ला दिता उसके बाद चिंता करने की लोड़ नहीं होती सी। अतुल जी पूरी तरह उस तन्मई के नाल पूरा कर। मैं अपने वालों और भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों इस दुख की घड़ी कपूर परिवार के नाल अपनी संवेदना व्यक्त करता और प्रभु के चरणों च यही अरदास करता कि प्रभु विछड़ी आत्मा को अपने चरणों च स्थान देना और अतुल जी और उन्होंने भरावां को एक शक्ति देना कि उन्होंने दिखाए रस्ते पर चलते हुए देश और समाज की इस तरह सेवा करते रहें। जय भारत। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, परमात्मा उन्होंने अपने चरणों से स्थान बख्शे। मेरे को जो शोक संदेश आए हुए ने वो पढ़ने मैं खड़ा है। श्री गणेश दरबार मंदिर धर्मशाला जस्सिया रोड लुधियाना तो कैलाश भारद्वाज चेयरमैन जी, राज कुमार जी और उन्होंने बाकी काफ़ी सारे साथी आए हुए ने अपना शोक संदेश लैके। गणेश महोत्सव कमेटी रजिस्टर्ड दुर्गापुरी हैबोवाल कलां तो कंडोलेंस मैसेज आया। राम कुमार जस्सा जी प्रधान, कैलाश भारद्वाज जी और उन्होंने साथी। श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर दुर्गापुरी हैबोवाल तो शोक समाचार प्रस्ताव आया। बाबा संजय गुप्ता जी और उन्होंने साथी इत्थे आए हुए ने। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार टिंकू जी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट खन्ना तो शोक संदेश लैके आए हुए ने। डॉक्टर सुभाष वर्मा जी बीजेपी तो एक्स चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लुधियाना, उन्होंने शोक संदेश आया हुआ है, आप भी आए हुए ने। रुपिंदर जीत कौर मोंगा रूबी लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मैंबर बीजेपी महिला मोर्चा शोक संदेश लैके आए हुए ने। विनीत पाल सिंह मोंगा सीनियर बीजेपी लीडर पंजाब शोक संदेश लैके आए हुए ने। कमलजीत सिंह मोंगा जी प्रेजिडेंट लुधियाना सिख माइग्रेंट वेलफेयर बोर्ड शोक संदेश लैके आए हुए ने। पवन टिंकू जी प्रेजिडेंट लुधियाना देहाती बीजेपी इत्थे आए हुए ने। कवलजीत सिंह जी, विनयपाल सिंह जी, रुपिंदरजीत कौर जी। हैबोवाल महोत्सव कमेटी रजिस्टर्ड वालों श्रद्धांजलि संदेश आया। उन्होंने चेयरमैन अनिल जसरा जी, प्रधान अश्विनी भागी जी और बाकी सारे पदाधिकारी आप भी इत्थे आए हुए ने। श्री कृष्णा महोत्सव कमेटी हैबोवाल वालों श्री हेमराज अग्रवाल जी, श्री सतीश शर्मा जी का शोक मता आया हुआ है। श्री संकट मोचन धाम न्यू दीपनगर गली नंबर 3 चूड़पुरा हैबोवाल कला तो श्रद्धांजलि लैके मुख्य संचालक भगत संतोष शर्मा जी और उन्होंने समस्त सेवकगण आए हुए ने। युवा एनजीओ तो कुमार गौरव जी जो कि सच्चा यादव के नाम से समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, आप आए हुए ने। ऋषि अग्रवाल जी, रनेश मिश्रा जी जो सीनियर बीजेपी लीडर ने, राशि अग्रवाल जी, सुनील मेहरा जी, श्री प्रवीण बांसल जी जो कि पंजाब के विच बीजेपी का एक मुख्य चेहरा ने, वो आए हुए ने अपना परिवार के नाल दुख मनाने के लिए। हरीश मेघराज जी जनरल सैकटरी, हैबोवाल मंडल एक्स मैंबर रेलवे बोर्ड। लक्की चोपड़ा जी बीजेपी तो, सतीश, काफ़ी सारे होर नाम ने। लिस्ट काफ़ी लंबी है, अगर मैं सारी लिस्ट पढ़ता रहा तो जतिंदर मित्तल जी जो कि बीजेपी के एक्स प्रेजिडेंट है, बीजेपी की तकरीबन सारे लीडर लुधियाना के पंजाब के, उस तो इलावा बाकी भी जड़ियाँ राजनीतिक पार्टियां ने उन्होंने भी काफ़ी सारे
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। मैं बाबू जी से ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ आओ दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਸਾਬੀ ਟੂਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਰਜਨੀਸ਼ ਧਮਾਨ ਜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਪੂਜਨਯੋਗ ਮਾਤਾਓ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਬੀਬਾ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੰਗ ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਐਡਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਈਆਂ। ਐਡੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਸਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। 2011 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। और ऐसा होया भी है, उस इलाके के लोग भी जानते हैं, परिवार भी जानता है कि इस इलाके च जाना तो जब तक कपूर फैमिली को ना मिलना तो इस तरह लगता सीगा भी कुछ सोना रह गया। ये बाऊ जी की रिश्तियां नूं तरजीह देने की उसकी गहराई च जान का उन्होंने गुण सी। दूसरा बड़ा गुण, मैं कदे भी उन्होंने मायूसी च नहीं देखते, हमेशा ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ। मैं कदे कदे सोचता सी कि क्या बाऊ जी को कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, या तो कोई चिंता नहीं है या एडी महान शख्सियत सी भी हर चिंता को खुशी के नाल सहना, ऐसी वो ताकत सी। दूसरा तीसरा असीं कहने अतिथि देवो भव, जे बड़ा गुण सी, हुनर सी ते बाऊ जी के घर च कोई चला जाता मेरे ख्याल नहीं है भी वो किसी तरह की वो सेवा तो बगैर उन्होंने जान दे दें। चौथा गुण, बगाने को अपना बनाने का जिहड़ा उन्होंने तरीका सी, अज जो मैं गुण बच्चियां च भी देखता। ऐसियां आत्मावां
ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੀਣ ਦਾ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, पर दुख के नाल नाल एक संतोष भी है कि अपनी जिंदगी च उन्होंने अपने किरदार का एक मुकाम हासिल किया, और उस मुकाम की लड़ी नूं बच्चे अगे लैके जा रहे हैं। मैं अपने वालों परिवार के वालों तुहाडे सब दा जिन्ने लोग इस दुख नूं साडे नूं घटाउण आए हैं, मैं उन्हां दा आभार प्रगट करदा। परमात्मा ऐसी पवित्र आत्मा नूं अपने चरणों च स्थान देवे। तुसी भी दुख घटाया है, परमात्मा भी सानू शक्ति देवे ये दुख सह सकीए। ओम शांति। श्री अजय गोस्वामी जी, महेश शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट, ये भी परिवार के दुख साझा करना है। बहुत धन्यवाद जी तुहाडा। ब्रदर सेवा दल तो भी सारी टीम आई हुई है, नितिन भंडारी जी के नाल, हैप्पी गुलाटी जी गणेश सेवा दल सेवा परिवार तो आए हुए हैं, नरिंदर मल्ली जी एक्स काउंसलर भी आए हुए हैं परिवार में दुख साझा करने लिए, दविंदर जग्गी जी, मोहन लाल जी एक्स एसएचओ हैबोवाल पंजाब पुलिस तो आए हुए हैं, हरजोत सिंह हरीके जी एडवोकेट एक परिवार में दुख साझा करना है, नरिंदर सिंह मल्ली एक्स काउंसलर, दविंदर जग्गी जी एक्स काउंसलर, पिपलसूर काका जी जो कि पंजाब के सीनियर लीडर ने, उन्हें परिवार में दुख साझा करना है। मेरे को किसी का नाम पढ़न लग्या, नाम बोलन लग्या कोई गलती हो गई होवे तो मैं माफ़ी चाहना। तो हीर दे विच परिवार की तरफों सारी संगत को हथ जोड़ के गुजारिश है कि चाह का लंगर लगा हुआ है, सारे जने चाह जरूर लैके जान। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल के स्वामी ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, केशविद मिलहु दयालु, केशविद मिलहु कृपालु, तुम गुण गुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है
तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण प्यारा दे मेरा ओम जय जगदीश ओम जो शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति गणपतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभूम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि शुभ शांतिर्भवतु ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलिए सच्चिदानंद भगवान